चलिए अब सीधे चलते हैं संसद, जहां एस जयशंकर जो है संसद में अभिभाषण दे रहे हैं। सीधे रुख करेंगे संसद का। Are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. I thank you. Sir, one second. Please take your seat. Honorable members, take your seat. Will you take your seat? The House has to be run on some rules. Yes, sir. Your leaders are aware of it. Sir, I am aware and this is for... Please take your seat. Your party has not given your name. Honorable members, under Rule 251, a statement may be made by a minister on a matter of public importance with the consent of the chairman, but no question shall be asked at the time of the statement is made. 1 second. Have some patience. Don't jump the gun. My permission was taken by the Honorable External Affairs Minister to make the statement today. There was a request from the Leader of the Opposition, and that was agreed by the Parliamentary Affairs Minister and Leader of the House, that looking to the public sentiment and need for clarity, some brief interventions may be allowed. I examined the request that came from both sides, and I took the call that I'll be making a departure that will not graduate to a precedent, and I would urge the members whose names have come to me to make brief interventions up to 3 minutes. I call upon Shri Randeep Singh Surjewala. 3 minutes. शुक्रिया सभापति जी। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत मां का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या ये व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर, कितने हजार और भारतीय हैं? हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में
इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है। तीसरी क्लैरिफिकेशन सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके एक एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए। अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन सर, I'll close it then. Thank you. क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? तब जब 1993 में जब हमारे एक डिप्लोमेट के साथ, सर एक लाइन सर, इसी के साथ इस खबर पर हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। उनसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो विदेश मंत्री ने सफाई दी है, बात कही है, उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं। सर, अभी जो भाषण दिया है विदेश मंत्री ने, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे आपत्तिजनक बात ये है कि जिनको डिपोर्ट किया गया है अवैध तौर पर जो रह रहे थे, ऐसा अमेरिका का दावा है कि ये भारतीय वहां बिना किसी वैध प्रक्रिया के तहत आए थे, कोई कागजात नहीं थे, उनको जंजीरों में जकड़ कर भेजा गया। वो जब उतरे हैं अमृतसर एयरपोर्ट पर तो देखा गया है कि उनके पैर, उनके हाथ जंजीरों में बंधे हुए थे और 40 घंटे का ये पूरा ट्रैवल का टाइम था और 40 घंटे आप समझ सकते हैं कि प्लेन में जंजीरों के साथ बैठे रहना कि जैसे ये लोग आतंकवादी हैं, जबकि ये वो लोग हैं जो, ठीक है उन्होंने नियम प्रक्रिया नहीं अपनाई, ये उनका दोष है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उन्होंने अपना घर बार बेचकर अपनी मुश्किलों से जूझते हुए वो अमेरिका पहुंचे थे। कम से कम उनकी एक ऐसी वापसी तो होती जिसमें उनको किसी अपराधी की तरह न भेजा जाता। और ये बहुत आपत्तिजनक बात है और भारत को एक तरह से अमेरिका ने ये कदम उठाकर, अभी 4-5 देशों में अमेरिका ने ये कदम उठाया है जहां के निवासी जो कथित रूप से अवैध तौर पर रह रहे थे अमेरिका में, उनको उनके देश भेजा है। भारत जो कि अमेरिका का मित्र है, ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री के संबंध किसी से छिपे नहीं है, इन परिस्थितियों में अमेरिका का ये कदम एक झटके के तौर पर मैं देखता हूँ। विदेश मंत्री ने हालांकि अभी किसी सख्त शब्दावली का यहाँ पर अपना उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनका ये कहना काफी महत्वपूर्ण है कि हम जवाब देंगे। यानी भारत इस समय अपनी जवाबी तैयारी कर रहा है और मुझे लगता है कि ये विषय गरमाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का जल्दी ही अमेरिका का 2 दिन का दौरा है और उस दौरे के पहले ट्रंप साहब ने ये करके भारत को एक झटका तो दिया है और अब भारत एक सख्त उत्तर की तैयारी मुझे लगता है करेगा। और विदेश मंत्री ने इसके संकेत ये कहकर जरूर दे दिए हैं कि हम जवाब देंगे। जवाब किस तरह का होगा, किस तरह की बातें होंगी, ये आगे भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका ने भारत को, ट्रंप ने आते ही भारत को एक झटका दिया। जी बिल्कुल सर, तो एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी कई वीडियोस आ रही है जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रही है और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि हाथ और पैर में जंजीरें बंधी हुई है और अब फिलहाल अगर देखा जाए तो विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना भी साध रहा है। अब ऐसे में अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते की बात करी जाए तो काफी अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन इसके बाद क्या असर पड़ेगा दोनों के संबंध पर? देखिए, संबंधों पे असर की बात नहीं है, बात है कि अगर आपने किसी प्रक्रिया में अपने एक मित्र देश के साथ मित्रतापूर्ण संबंध के बजाय एक ऐसा व्यवहार जताया है जैसे कि हम आपके उतने अच्छे मित्र नहीं हैं, तो इससे संबंधों में कोई बहुत फर्क पड़ जाएगा ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, भारत ये अमेरिका को बताएगा जरूर कि हमें आपसे ये अपेक्षा नहीं थी कि आप अगर भेजना ही था तो गरिमा के साथ भेजते, सम्मान के साथ नहीं भेज सकते थे, लेकिन उनको अपराधियों की तरह, आतंकवादियों की तरह आपने भेजा। ये आपने क्यों किया?
आपको जो भी नियम प्रक्रिया थी, आप उसके तहत भारत के वहाँ जो राजनयिक हैं, डिप्लोमेट हैं, आप उनसे बात करते। अपनी आपत्ति आपको जतानी थी तो आप राजनयिक जो डिप्लोमेट हैं, विदेश मंत्री के सामने अपनी बात रखते। लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा अमानवीय सलूक आपने क्यों किया? आप कल्पना कीजिए कि हम अगर बिल्कुल सर, भारत हर में एक्शन का रिएक्शन तो होता ही। अब देखने वाली बात होगी कि भारत का आने वाले समय में क्या कुछ रिएक्शन होता है। शुक्रिया आपका इसी के साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अब